ଝରେ ମୁଖରୁ ଭାବ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ପାପି ତରନ୍ତି ତପିତରନ୍ତି ତପତ ବୈତରଣୀ ପାରିବ ଯଦି ତାରାକୁ ଗଣି ମାପି ପାରିବ ସାଗର ପାଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖ ଏମ୍ବିସି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ। हरि ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता। कोटि ब्रह्मांड नायक जगतर नाथ जगन्नाथंकर अभय चरण रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति मोर पितृमातृ चरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। सज्जन शास्त्र कहती भगवानंकर कृपा उपरे जिए भरोसा रखे भगवान तार सकल रिष्ट सकल दुख को निजे बहन करती। कहीं ना शास्त्र कहती भगवान होउचंती भक्ति एवं विश्वासर ठाकुर। गोटे राज्य रे जड़े राजा थांती एवं तांकर जड़े चतुर मंत्री थांती। मंत्री जनक भगवानंकर कृपा उपरे भरोसा रखी थांती। गोटे दिन कथा राजांकर संतानर मृत्यु होला। मंत्री कहिले जहा प्रभुंकर इच्छा। राजा शुणिले नीरव रहिले। पुनर्बार किछि दिन परे राणींकर मृत्यु होला। राजा मंत्रींकर कथा शुणिले मन को आघात आसिले मध्य नीरव रहिले। आउ किछि दिन जाइछि राजसभारे राजा निजर तरबारी को निज आंगुठी रे तनखिबा समय रे तरबारी रे निजर आंगुठीर किछि अंश कटिगला। एथर मंत्री मध्य कहिले जहा प्रभुंक इच्छा। राजा किंतु मंत्रींकर एक कथारे व्यथित हेले क्रोधित हेले एवं मंत्री को निज राज्यरू काढ़ी देले। किछि दिन जाइछि राजा शिकार उद्देश्य रे वन को आसिचंती। वनरे भ्रमण करू करू सैनिक एवं राजांक मध्य किछि तालमेल रही नाही। राजा सैनिक मानक ठारू अलगा होई गोटे अन्य अंचल रे प्रवेश करि जाइचंती। प्रवेश करिबा परे किछि कुजन बा असत संगींकर राजा प्राप्त होइचंती। राजांकु धरी राजांकु बलि देवा निमंते निकटस्थ मंदिर रे जाई देवी मंदिर रे जाई राजा को नहीं पहुंची। जेतबेले बलि देवा उद्देश्य रे राजा को आनी पुरोहितंक पाखरे पहुंचाइले। पुरोहित प्रथमे राजा आनीथिबा लोक मानंकु कहिले जे आग राजा को देख राजांकर अंगरे कौनसी क्षत नहीं तो। देखु देखु राजांकर गोटे आंगुठी कटि जाइछि। एथर पुरोहित निर्देश देले
ଯେ ଯେହେତୁ ଏହାର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି କଟି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ବଳିର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଏଥର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ରାଜସଭାରେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତି ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାରଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କଟିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିଲ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, କ'ଣ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକା ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନା ଅଙ୍ଗଟି କ୍ଷତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ବଳିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ମୋର ତ ଅଙ୍ଗଟି କ୍ଷତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ମୁଁ ବଳି ହେଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଏଥର ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇଦେଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭରସା କରିଛି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ଥରିଏ ଯଦି କିଏ ଭରସା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାର ସକଳ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଅର୍ଜିତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛେ, ଯଦି କର୍ମଟି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଯଦି କର୍ମଟି ନିନ୍ଦିତ ହେଇଥାଏ ବା ଅପକର୍ମ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ତ ପାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେହି ମନ୍ଦ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ କଥା ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉକ୍ତ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜା ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं अनंतकोटिकैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चरणारविंद जुगलरे शतकोटि प्रणाम। अमृतवाणीर ये दिव्य और भव्य अध्याय को आपण मानक समस्त को स्वागत और अभिनंदन। आत्मतत्वर दिव्य बा अनंत्य विषय रे आमे माने श्रवण करुथिले। भगवान श्रीकृष्ण
आत्मस्वरूप को बुझाऊँच ना तांकर कर्म अच्छी न स्त्री न पुमान ये सह अर्थात ना तांकर कौन सी लिंग अच्छी सबुठारु से होउछंती च्युत ना तांकर निष्क्रियता अच्छी ना सक्रियता अच्छी ना से क्षुद्राति क्षुद्र ना महतो अत्यंत वरिष्ठ तेणु यही कथाटी को आहुरी सहज करवा दिने आमर शंकराचार्य अर्थात अद्वैतवादर जो अद्वैत दर्शन अच्छी अद्वैत दर्शनर प्रचंड दार्शनिक आमर शंकराचार्य अरण्य निजर सखा निजर शिष्यगणक सह चलुंट अनेक शास्त्र चर्चा चली शास्त्र चर्चा मध्य हठात गोटे विराट मत्त हस्ती तांको आक्रमण करी आक्रमण करते शंकराचार्य भयभीत होती दौड़बार लगी जिते दौड़ते तांकर शिष्य अच्छा पद्मपाद पाखरे पद्मपाद शिष्य जी आमर पुरीस्थ जो निश्चलानंद सरस्वती अच्छा पुरी पीठर आद्य आचार्य होउछन्ते तांकर पद्मपाद आचार्य अर्थात ऋग्वेद पीठर से होउछन्ते अधिकारी गोवर्धन पीठ बोली कहा जाए तेबे से पद्मपाद आचार्य गुरु को विनम्र प्रणाम जन पचारुछन्ति हे भगवान तुम दौड़ुच ना रे करी कौन गोटे हाथी पूरा गोड़ौची सिठी पद्मपाद कहते कहे आपणकर सिद्धांत होउची ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापर ये सिद्धांत अनुजाई ये सारा ब्रह्म सारा जगत होउची मिथ्या गोटे सत्य से होउची ब्रह्म सत्य ए सारा जगत मिथ्या होइथिबा स्थले ये जो हाथी आमको आक्रमण करुची ये भी मिथ्या आ गोटे आपण होउचंती सत्य जेहेतु आपण होउचंती अंश विशेष आपणक ठारे भगवत अंश विशेष अच्छी भगवत अंश विशेष थिबा बेले आपण ब्रह्म हेई गोटे मिथ्या वस्तु आपण को आक्रमण करुची आपण दौड़ुछंती ये किभली संभव दौड़ू दौड़ू यही कथा पद्मपाद पचारुछंती शंकराचार्य को कहउछंती गुरुजी अरे मूर्ख ये समय ये प्रश्न पचरा जाए कौन भावुचु तू हाथी टे मारिदेव मारिदेव जीवन पलैब ए समय तू ये समस्या उत्थापन करुचु कहउछंती कौन ना हे भगवान तमे मो शंका संदेह आग निवृत्ति करा तापरे मु सिद्धांत को मानिबा दौड़बा जहाँ हम से समय रे आद्य शंकराचार्य कहउछंती अरे मूर्ख जेभली ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या मु जा बाणी कहिछि ना जेभली ये सारा जगत मिथ्या ये हाथीटी होउछि मिथ्या तो कथारे आम दौड़बा भी होउछि मिथ्या कारण ये आमर आमर बोली किछि नाही अर्थात गोटे पक्षरे आमे दौड़ू थाई अन्य पक्षरे आम दौड़बाटा मध्य मिथ्या कारण जी आसुची सी भी मिथ्या आम दौड़ियाटा भी सबू किछि तेणु गोटे एभली परिपक्व बा अपरिपक्व जहाँ को आम चैतन्य कहे जहाँ को साकार कहे जहाँ को आम अचैतन्य कहे जहाँ को निराकार कहे सबू किछि एभली आमर तत्वटीए ताकू आम आत्मतत्व बोली कहू तेणु आत्मतत्वटी को अत्यंत सरल है भक्तिटीए जदि आम मनरे नवा बोध हुए मुझे भावुची ताको बुझापी आमको सुगम हम इटी शास्त्र शास्त्रांतर आचार विचार दरकार ना भक्ति भाव मनरे नेले तेणु भक्ति जोगरे आम देखा किभली आत्मतत्व को बुझापी आहुरी अनेक सरल मार्गमान भगवान कही तेबे आजिर श्लोक कौन कहते देखा देही नित्यमबोधोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि हे अर्जुन हे भारत पुनः निजर वंश को मन पकाउछंती निजर वंश को मन पकईवा द्वारा निजर गर्व गौरव मन पड़ जाए से ही कथा को मन पकई हे भारत वंशोद्भव कहले कौन ना सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम अबाध्य सारा संसार रे जेते जीव अछंती से जीव मानक ठारे नित्य भावरे यही अबध्य आत्मतत्व कौन करिथाय ना अबध्य ही रही थाय पुनः तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न अर्हसि तेणु तू समस्तंक पाई समस्तंक उद्देश्य रे चिंता करिवा तोर आवश्यक नहीं कारण ये तो समस्तंक ठारे परिपूर्ण ही अछंती अपरिपूर्ण ये नुह ये परिपूर्ण विग्रह किंतु परिपूर्ण विग्रह होइथिबा स्थले निजर शरीर रूपक आवरण द्वारा आवृत हो आमको अपरिपूर्ण परि उद्भासित होउछंती सिना हे भरत एभलिया तू ताकू जाने जीए प्रत्येकटी समय रे नित्य भाव रे समस्तंक देहरे यही जो आत्मतत्व अबध्य रूपरे अर्थात
कौन सी समय रे जी बधयोग्य नुह जी चली जावा योग्य नुह नित्य भाव समस्त शरीर रे अछंती आउ तेणु समस्त शरीर रे थिबा हेतु तू समस्त चिंता करना तस्मात् नत्वम शोचितुमर्हसि तुम्हें शोक करने अनुचित। इठी भगवान युद्ध करने कहूना पुनः अर्जुन मनरे जो शंका संदेह आसीथिला से शंका को निवारण करने कहते तुम्हें चिंता कर ना कारण चिंता तुम्हें कर क्या द्वारा से आत्मतत्व द्वारा आत्मतत्व द्वारा चिंता कहीं कर जहाँ उद्देश्य कर सी द्वारा प्रतिफलित ठारे आत्मतत्व प्रकाशित आ तुम जहाँ जो जेभली आमर आत्मतत्वटी किभलिया जेभली आमर सुवर्ण रहिला सुवर्णटी रे अलंकार आमे तैयारी करूँ गोटे मुद्रिका हो मुद्रिकाटी नष्ट हो गला पर सुवर्ण तत्व जाए कौटी कि ना सुबंध में मिसी जाए ठीक से ही भाव में सूर्यंकर किरणटी जितेबाला भूमि रे पड़े वर्षा होची तामाने कौन किरणटी अनित्य हो गला सी नित्य रहिला से भली ढंग इठी नित्य पुरुष सदा सर्वदा नित्य अवस्थित रही आ नित्य अवस्थान करुथिबा नित्य अधिष्ठान भाव रही तुम अनित्य बोली ज्ञान न करी नित्य ज्ञान करी समस्त उद्देश्य रे तमे शोक कर नाही कारण सी थिले सी रहिबे एबे मध्य अछंती तुम्हें किसी करिवार नाही अचिंत्या खलु वै भावाः नताम तर्केण चिंतयेत न्याय रे सी अचिंत्य होइथिबा हेतु तमे तांकु चिंता कर नाही ए विषय को अर्जुन को भगवान कृष्ण कहउछंती आमे आगामी अध्याय रे विषय को आलोचना करिबा एबे समस्त कहिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु मानकु मोर नम्र नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णः मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शक बंधु आमे समस्ते संसार रे रही समाज रे रही भाग्य द्वारा परिचालित हेउछु। भाग्य बोली गोटे कथा अच्छी नक्षत्र मानकर प्रभाव ग्रह मानकर प्रभाव आम उपरे रहिछि सेही प्रभाव रे आमे प्रभावित हेउछु पुणी आमर पूर्वजन्मर कर्मफल आमे भोग करुछे ताहा मध्य भाग्यर अन्य नाम बोलिकरी आमे कहि परिबा। समस्तंकर ए भाग्य को आमे विधि लिपि कि अदृष्ट बोली मध्य परिकल्पना करिछु। शास्त्र रे कहा जाइछि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही फलिब कर्मफल अवश्य मिलिब ताकु केही एड़ै पारिबे नाही। एवं कवि माने मध्य से कथा बहु भाव रे कहउछंती भाग्यवान सदा भाग्य फल लभे अभागा लभे असीब। किंतु एतिकिरे बांधी हो गले कौन चलिब केवल भाग्यवादी होई रहीगले कौन जीवन रे अग्रगति मिलिब। आमको आगको जीवाको हब चेतना क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र रे विचार क्षेत्र रे कल्पना क्षेत्र रे आगको जीवा ही जीवनर सार्थकता। सेइथिपाई एक विराट शक्ति अछंती जहाँकर शरणागत हेले सेई भगवान को आश्रय कले आम भाग्य रेखा लिभिजीव कारण सी होउछंती अकर्म कर्मदायक से ही भाग्य को बदलई दे पारंती। मने पड़ुची प्रसंग रे माँ शारदा देवींकर कथाटीए से कहती कर्मफल अवश्य फलिब ताकू केही एड़ाई जाई पारिबे नाही मात्र जदि साधन भजन थाए तेबे जेउठारे खंडारे आघात हवा कथा सेइठारे हुए तो कंटाटीए फुटी जाई पारे। भगवान केवल आमर समस्त प्रकार भाग्यजनित असुविधा असंतोष अशांति को दूर कर देई पारंती।
जातक बोली आमे जहाँ कहूछु सेही तो सेतिरे आमर भाग्य लेखा लिपिबद्ध होइछि बोली आमे विश्वास करू। मने पड़े एई प्रसंगरे श्री मांकर उक्तिटिए से कहती तू कौन भगवान को जातक ठारू अधिक शक्तिशाली हेबाकू देबु नाही। भगवान को निमंते कौनसी अपरिवर्तनीय जातक नाही। आ गोटे कथा से कहती जे गोटे छातरू टाइल टी खसिबार थिला जड़े लोक से बाटर सेते बेले जीवार थिला टाइल टी खसिला से व्यक्ति जनक मध्य से बाटरे गले किंतु भगवत आश्रय नहीं जोगु टिके अलगा प्रकार कथाटी घटिला। कौन से कथा ना आउ जड़े कहार से कथाटी दृष्टिगोचर हेबारु से आसी मझीरे ए टाइल टी को धरी पकेइले फलरे से खसिला पड़िला किंतु जेते आघात दबा कथा से व्यक्ति को जे जाउथिबा व्यक्ति को सेते आघात देई पारिला नाही। तेणु भाग्य को बदलई दबार सामर्थ्य भगवानकर अच्छी एक कथा आमे पुराणरू मध्य जाणु। मृकण्डकर पुत्र मार्कंडेय जहाँकर आयुकाल 12 वर्ष मात्र थिला। जेतेबेले 12 वर्ष तांकर पूरण होईगला सेतेबेले जमदूत माने तांको नबाकू आसिले आउ देखिले सेतेबेले सी शिवं को आलिंगन करी रहिछंती तांको शरण रे अछंती। जमदूत माने शिवंकर से तेजरे से दीप्ति रे से प्रभुत्व रे एते बेसी आचंबित होई गले जे से माने फेरी गले एवं जमराजा को निजको आसीबा को पड़िला। एई भितरे प्रभु महादेव 12 वर्ष को 120 वर्ष कर देथिले। भगवान को इच्छा रे जे असंभव संभव हेई पारे एहा तार गोटे विशिष्ट उदाहरण एवं जमराज निजे आसी देखिले जे प्रकृत रे से जातक रे 120 वर्ष अच्छी 12 वर्ष नाही। फल से फेरी जावा को बाध्य हेले। कहिबार अर्थ जे भाग्य भाग्य बोली कही निजको निंदा करी हतभाग्य हतभाग्य करी कही निजर मथा बाड़ेले किछि लाभ हब नाही बरं भाग्य को अतिक्रम करने को हब भगवान को कृपा बलरे आउ निजर आत्मविश्वास बलरे। श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य रे गोटे कथा कहउछंती कहले फेट कैन बी चेंज्ड बाय एन अनचेंजिंग विल। भगवानकर जो अनचेंजिंग विल अच्छी ताहा बलरे भाग्य आमर बदली पारे एवं आमर जो कॉन्फिडेंस अच्छी जे हाँ मो भाग्य को मु निजे अतिक्रम करी कारण गत जन्म रे कौन मोर कर्मफल कर्म थिला ताहा मु जानी नाही मोर स्मरण रे नाही। जदि तार फल किछि मते भोगिबा को पड़ुछि बोली भाग्य कहे ताहले ताकु मु अतिक्रम करिबा को भगवत शरण नेबी कारण से सबु किछि करि पारंती से कर्तुम समर्थ भगवान अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ। सेही भगवान जे सबु किछि करि पारंती जे पांडव मानकर भाग्य बदलई देले सेही लाख घरे जहाँ दुर्योधन करथिले पांडव मानकु रखी अग्नि संजोग कर देइथिले एवं जहाँ भाविथिले जहाँ तांकर भाग्य रे थिला बोलिकरी जहाँ थिला स्थिरीकृत ताहा हेला नाही कारण तांकर जो भगवत शरण सेही शरण तांक भाग्य को बदलई देला एवं से अतिक्रम करिगले सेथिरु जीवंत अवस्था से बाहरी आसिले। अतएव भाग्य को बड़ करी एते बसी रहिबा नाही आमे भगवान को आश्रय करी आमे निजर आत्मविश्वास को पाथेय करी आमे आग को जीवा एवं चाहिबा आमे सबुथेरे निश्चित भावरे आमे साफल्य अर्जन करिबा एवं आमे निश्चित भावरे अग्रगति करिबा।